زنیرہ اپنے گھر میں سب کے لاڈلی تھی اور چھوٹی بھی تھی، معصوم سی پیاری سی۔ اس کے بھورے بال اور آنکھوں کی وجہ سے سب اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے خوشبو سے لگاؤ کی وجہ سے اکثر اسے دادوں سے باتیں سننا پڑتی تھی۔ اس کی دوست کی مہندی تھی اور وہاں پر اس کو جانا تھا۔ دادوں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلی گئی اور مہندی کا انتظام چھت پر کیا تھا۔ اسے بہت زیادہ پرفیوم لگانے کی عادت تھی۔ گھر آئی تو پھر اس کو دادوں سے بہت ڈانٹ پڑی۔ زونی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ ضروری نہیں ہے بڑوں کی بات کو رد کر کے ہر جگہ منمانی کی جائے۔ جانتی ہو رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبو لگانا نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نہیں ہوں میں تمہاری۔ دادو روحانسی ہو گئی۔ بہت بری بات ہے زونی جو تم نے اپنی دادوں کی نافرمانی کی۔ والدہ بھی ناراض ہو گئی۔ اس پر گھڑوں پانی آ گرا۔ وہ دادوں سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ سراسر میری بدتمیزی، بے ادبی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے باوجود یہ حرکت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ زارا اور زنیرہ کا ایک ہی کمرہ تھا۔ زنیرہ جب کمرے میں گئی تو زارا سو چکی تھی۔ زنیرہ کو اپنے قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ایک اندیکھا وجود بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اسے اپنے وجود میں طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بے انتہا بھاری ہو رہا تھا۔ زونی بڑی مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گر گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے وجود میں اٹھتی تپش کا یعنی گرماہٹ کا احساس ہونے لگا۔ وہ بستر پر لوٹنے لگی۔ لاتعداد انگارے اس کو اپنے وجود میں رقص کرتے محسوس ہونے لگے۔ ایک اندیکھی آگ اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے گردن موڑی اور زارا کو آواز دینی چاہی، زارا، مگر اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے۔ صبح کے وقت اس کو اٹھایا گیا۔ زونی اٹھو، 11 بج رہے ہیں۔ زارا نے زنیرہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی۔ زنیرہ بھٹی کی طرح تپ رہی تھی اور اس کی گوری رنگت تانبے کی طرح ہو رہی تھی یعنی لال۔ زونی، اس نے اس کی دیکھتی پیشانی کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ زونی، یہ لو، تمہاری فروٹ چاٹ بنا کر لائی ہوں، زارا نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، مگر کمرہ خالی تھا۔ زارا نے ٹرے ایک طرف رکھی اور زونی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے سب جگہ دیکھ لیا مگر وہ نہ دکھائی دی۔ پھر زارا کا ذہن چھت کی طرف گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی مگر اوپر پہنچ کر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ سامنے زونی بڑے سے لگے ہوئے جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری بال پھیلے ہوئے تھے اور ساری چھت خوشبو سے رچی ہوئی تھی، جبکہ زونی کے اوپر سیاہ بادل جیسا اندھیرا ہو رہا تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں ملی، پھر دوبارہ دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ زارا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ جا کر اس پر برس پڑی۔ یہ کیا پاگل پن ہے زونی؟ دادوں نے منع کیا تھا نا تمہیں اس طرح پرفیوم لگانے سے، وہ بھی مغرب کے وقت۔ جواب میں زونی نے زارا کو چند لمحے گھورا، پھر اجنبی انداز سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اٹھو یہاں سے اور نیچے چلو۔ زارا نے اس کو اٹھایا۔ زنیرہ اٹھ تو گئی مگر آگے نہیں بڑھی۔ چلو اب، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو چلو جلدی، ہاتھ سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ جواب میں ایک تھپڑ زارا کے پڑا اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ اذان کی آواز آئی تو زونی خود تیزی سے نیچے بھاگ گئی اور کمرے میں گھس گئی۔ زارا اس کی حرکت پر حیران پریشان نیچے آ گئی مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلے روز جب زونی واش روم میں تھی تو زارا نے اس کے سارے پرفیوم اٹھائے اور انہیں لے جا کر باہر پھینک آئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو زونی، بڑوں کی عزت کرنا بھول گئی ہو، یہی تمہاری سزا ہے، زارا نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے امی سے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے۔ اب زارا نے گرم اور ٹھنڈے پانی کو بیلنس کیا، شاور کھول دیا۔ پھر سر میں شیمپو لگانے کے لیے اس نے شاور بند کیا۔ بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد زارا نے جیسے ہی شاور کھولا اور اس کے نیچے جب وہ آگ کھڑی ہوئی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے پورے وجود پر پانی لاوے کی طرح برس رہا تھا۔ پانی بہت گرم تھا۔ پانی ابلنے کے حد تک کھول رہا تھا۔ اس کے جسم پر چھالے پڑ گئے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز پر امی دوڑتی ہوئی آئیں اور باہر سے معلوم کرنے لگی۔ زارا نے چیخ کر امی کو اندر بلایا۔ بڑی مشکل سے کنڈی کھولی۔ انہوں نے جب بیٹی کی حالت دیکھی تو ان کی بھی چیخ نکل گئی، تڑپ گئی۔ انہوں نے بڑی سی چادر سے اسے ڈھانک دیا۔ پھر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ کافی روز اس کا علاج چلا۔ پھر وہ صحت مند ہو کر گھر آ گئی۔ کمرے میں سارے لوگ موجود تھے اور جب وہ سب باہر چلے گئے تو وہاں پر صرف زونی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنا انداز بدل لیا۔ اگر خیریت چاہتی ہو تو اپنے کام سے کام رکھو، میرے بیچ آئی تو پھر دیکھنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا تمہارے ساتھ۔ ابھی تو صرف پانی گرا ہے، پھر سوچ لینا کیا ہوگا، بچو گی نہیں۔ زونی بیٹا، معاذ کی شرٹ استری کر دو، امی نے زنیرہ کو شرٹ دیتے ہوئے کہا اور وہ چلی گئی۔ زنیرہ نے شرٹ کی طرف دیکھا اور شرٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب معاذ اپنی شرٹ لینے آیا تو اسے دیکھ کر اس کے غصے کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ زونی، تم تو بالکل پھوڑ ہو،
सिवाय फैशन करने के कुछ नहीं आता तुम्हें। आप ही क्या बीमार हुई, पूरा घर उलट गया। तुम तो किसी काम की नहीं हो। एक काम कहा, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। पता है कितनी महंगी शर्ट थी ये जाहिल। मुआज गुस्से में बकता रहा और जुनैरा खामोशी से सुनती रही। मुआज के जाते ही कमरे की मेज पर रखा गुलदान खुद ब खुद किरची किरची होकर बिखर गया। मुआज बेटा, पानी की मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, जरा देख लो। अम्मी ने उससे कहा। जी अम्मी, आप चलें, मैं ये अपना काम कर लूं, फिर आता हूँ, उसने अदब से कहा। बेटा जल्दी नहीं है, आराम से अपनी पढ़ाई करके देख लेना, अम्मी ने कहा और चली गई। मुआज ने 10 मिनट बाद किताबें रखी और मोटर देखने चला गया। उस वक्त शहर में कोई नहीं था, उसके अब्बू भी घर पर नहीं थे। उसने बटन दबाया तो मोटर चलने लगी। लो जी, अम्मी तो कह रही थी चल नहीं रही, उसने खुद से कहा और बटन को बंद करने के लिए उस पर हाथ रखा ही था कि बोर्ड में आग लग गई। उसका हाथ वहीं चिपक गया, वो वहीं झटके लेता रहा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल सकी, वो जलकर स्याह हो गया। उसका पूरा जिस्म जल चुका था। एकदम आग बुझ गई और मुआज उछलकर दूर जा गिरा। कितनी ही देर वो सहन में पड़ा रहा मगर किसी को खबर ना हो सकी। जब मुआज के वालिद चाबी से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुए तो उनकी नजर मुआज पर पड़ी। वो चीखते हुए दौड़ते हुए उसके पास आए, उसको उठाकर हॉस्पिटल भागे मगर कोई फायदा नहीं था। वो वापस नहीं आने वाला था, आखिरी सफर पर रवाना हो चुका था। घर में सफे मातम बिछ गई। सारे रिश्तेदार मिलने वाले उस जवान मौत पर आबदीदा थे। जुनैरा अब भी अपने कमरे में घुसी खामोश बैठी थी। सब समझ रहे थे भाई की मौत का सदमा है। ज़ारा फिर भी हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और वालिदैन को दिलासे देती रही। उस मौके पर उसे अपनी फुप्पो से ढारस मिली। रुबीना फुप्पो अपने बेटे जामिन के साथ आई थी। उन्होंने बिखरे हुए गमज़दा वालिदैन को समेटा। जुनैरा की दादों की हालत भी खराब हो रही थी। मुआज उनका इकलौता पोता था। उसकी तदफीन के बाद ताया, चचा और रुबीना फुप्पो वहीं रुक गए। भाभी, इसका बोलना ये रोना बहुत जरूरी है, इससे कुछ बुलवाएं, रुबीना फुप्पो ने फिक्रमंदी से जुनैरा की अम्मी से कहा। फिर तो सबने जुनैरा को हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो जोनी कुछ न बोली, फिर मुंह उठाकर एक जन्नाटेदार थप्पड़ फुप्पो के रसीद कर दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। रुबीना फुप्पो चकरा कर रह गई और हक्का बक्का मुंह खोले जुनैरा को देखने लगी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की, एक नाजुक सी लड़की, और उसका हाथ इतना भारी, बिल्कुल मर्दाना। लम्हे भर को किसी की कुछ समझ में नहीं आया। अगले लम्हे सबके लिए दांतों तले उंगली दबाने वाला था। जुनैरा ने भारी आवाज में जब कहा, मर गया वो अपने किए की वजह से। जो मुझसे अड़ेगा अपने अंजाम को जाएगा। सब जुनैरा को चौंक कर देखने लगे। भाई, जोनी ने मुआज की मौत का असर दिमाग पर ले लिया है। भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरी बच्ची, जुनैरा के चचा बोले। घर वालों ने जोनी को पाबंदी से दवा दी मगर उसने किसी से मिलना तक बंद कर दिया था। कोई उसके कमरे में नहीं जाता। शाम होते ही जोनी तैयार होकर खुशबू लगाकर छत पर बाल खोलकर चली जाती और फजर की अजान से पहले अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती। फिर दरवाजा शाम को खुलता। ऐसा कब तक चलेगा? हमें जोनी को जबरदस्ती ले जाना होगा, जुनैरा के अब्बू ने कहा। फिर उन्होंने दोपहर में जबरदस्ती जोनी को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। अंदर सिर्फ मरीज को जाने को कहा गया था। अब वो अंदर आ चुकी थी। सुहेल हसन ने उससे सवाल किए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अच्छा, मैं आपकी हिस्ट्री देखता हूँ। फाइल देखी तो आपका नाम जुनैरा है। खामोश रही। ओके, तो मिस जुनैरा, आपकी मसरूफियात क्या हैं? जवाब में खामोशी। आपके घर वालों ने आपके भाई मुआज की डेथ के बारे में बताया। वाकई बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आपकी अपने भाई से काफी दोस्ती थी, राइट? सुहेल हसन ने जुनैरा की तरफ देखकर कहा, मगर उसने जवाब देने की कोई जहमत नहीं की। सुहेल हसन ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। फिर वो घूमकर टेबल की दूसरी तरफ बैठी जुनैरा के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, मिस जुनैरा, आप क्या समझती हैं? क्या आप बोलेंगी नहीं तो आपको मैं वापस भेज दूंगा। जब तक आप बात नहीं कर लेती आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हैं। सुहेल हसन का बस इतना ही कहना था कि जुनैरा एक झटके से उठी और जाने के लिए मुड़ गई। मिस जुनैरा, आप यूं नहीं जा सकती हैं। उसने उसे रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो खुद ब खुद फजा में ऊपर उठा और एक जोरदार धक्का लगने से दूर जा गिरा। उसकी कुर्सी उड़ती हुई उसके पास आकर गिरी। अगर वो एक तरफ नहीं होता तो वो उसको लगती। अब जो मंजर सुहेल हसन ने देखा वो देखकर उसकी जान जिस्म से निकलती हुई उसको महसूस होने लगी। जुनैरा के बाल खुद ब खुद खुलने लगे, फिर उसके बाल बिखर गए। जुनैरा ने ऊपर मुंह उठाया। उसकी आंखों में आग के शोले जल रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी चीज को छुए। जोनी के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली। सुहेल हसन ने गिरते पड़ते उठकर भागना चाहा तो उस कुव्वत ने उसका गला अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया।
सुहेल हसन को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा और वो दोनों हाथों से किसी अनदेखी गिरफ्त से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। भाभी बहुत देर हो गई है, अंदर चलकर देखते हैं, रुबीना फुप्पो ने जुनेरा की अम्मी से कहा। चलो। वो उठ गई और दोनों दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुई, अंदर कदम रखते ही दोनों हैरान परेशान मुंह खोले देख रही थी। उनकी नजर पहले सुहेल हसन पर पड़ी, जिसका मुंह सुर्ख गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, चेहरा पूरा लाल था। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ा हुआ था, जैसे किसी अनजाने वजूद ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया हो। डॉक्टर साहब, फुप्पो चिल्लाई। अम्मी ने जुनेरा की तरफ देखा। मेरी बच्ची, रुक वहीं। जोनी के मुंह से मर्दाना आवाज निकली। उसने फिर डॉक्टर सुहेल की सामान से भरी टेबल को एक हाथ से पकड़कर हवा में ऊपर उठाया, जो उसके सर से ऊपर उठ गई। फुप्पो ये मंजर देखकर गश खाकर जमीन पर जा पड़ी, जबकि जुनेरा की अम्मी ने अपने हवास पर काबू रखते हुए पुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया। कुछ देर में जुनेरा लहराकर कुर्सी पर जा गिरी और सुहेल हसन जमीन पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगे। जुनेरा की अम्मी उसके गाल थपथपाने लगी। जोनी, उठो बेटा। उसने आंखें खोल दी। सुहेल हसन उठे और बेल बजाकर स्टाफ को बुलाया। फुप्पो को पानी के छींटे मारे गए तो वो होश में आ गई, मगर जुनेरा को खौफजदा नजरों से देखने लगी। सुहेल ने जुनेरा को वहीं बिठाया और उसकी वालदा और फुप्पो को लेकर बाहर आ गए और एक तरफ ले जाकर बोले, देखें, आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मैं साइकियाट्रिस्ट होकर आपसे बात कर रहा हूँ, मगर मैं मुसलमान हूँ और इस बात पर मेरा यकीन है कि दुनिया में आसेब या जिन्नात का वजूद है। आप जितनी जल्दी हो अपनी बच्ची को किसी को दिखाएं। ये मेरा मैटर नहीं है, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आपकी बेटी का इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ, आप किसी आमिल को दिखाइए, वो आमिल जो इसके अंदर मौजूद जिन को निकाल सके। जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, अम्मी ने कहा और फिर वो वापस आ गए। जोनी को उसकी अम्मी ने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। फिर दूसरे कमरे में बड़ों की मीटिंग शुरू हो गई। रुबीना फुप्पो ने साइकियाट्रिस्ट सुहेल के होने वाले तमाम वाकयात से आगाह किया। सब बातें सुनने के बाद जुनेरा की दादू ने अपना सर पकड़ लिया। 1000 बार मना किया था इस लड़की को कि मत बसी रहा कर हर वक्त खुशबुओं में, मगर कब मानी इसने मेरी बात। खुशबू लगा लगा कर छत पर जाती थी। मुझे तो ज़ारा का जलना और मौज की मौत इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है। चचा भी बोले, ज़ारा को बुलाओ। जुनेरा के वालिद बोले, ज़ारा आ गई। बेटा, उस रोज क्या हुआ था जब तुम जली थी? अब्बू, जुनेरा दादों के मना करने के बावजूद परफ्यूम लगाकर मगरिब के वक्त छत पर लेटी हुई थी। मैंने उसे नीचे आने को कहा तो वो फिर ज़ारा चुप हो गई। उसने क्या किया बेटा? उसने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया, ज़ारा ने सर झुकाकर कहा। फिर अगले रोज मैंने उसके सारे परफ्यूम्स ले जाकर फेंक दिए। हो ना हो, जो भी हो रहा है इन परफ्यूम्स की वजह से ही हो रहा है। परफ्यूम फेंक कर मैंने नहाने का इरादा किया। नहाने का पानी चेक किया, वो बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही मैंने शॉवर को दोबारा खोला उसमें से उबलता हुआ बहुत ही ज्यादा गर्म पानी निकला। उसके बाद तुम्हारी जोनी से कोई बात हुई? जी चचा जान, जब हॉस्पिटल से वापस आकर मैं अपने कमरे में आई और सारे घर वाले कमरे से जा चुके तो जोनी कमरे में मेरे साथ थी। उसने अकेले में मुझे धमकी दी थी, अगर अपनी खैरियत चाहती है तो अपने काम से काम रख। मेरे बीच आई तो, और हाँ याद आया, जब उस रोज मैं उसे बुलाने छत पर गई थी तो मैंने जोनी के ऊपर एक स्याह बादल देखा था। वो स्याह बादल नुमा साया था, मगर वो पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने तफसील से बता दिया। जुनेरा की अम्मी सर पकड़कर बैठ गई और बोली, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। वो तो नादान थी, मगर तू बचाने वाला है। हिम्मत रखिए, मुझे एक हल समझ में आता है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। चचा बोले, जल्दी बताइए भाई साहब, हम जुनेरा का निकाह कर देते हैं। निकाह? ये कैसा हल है? हम उसका निकाह करके उसे रुखसत करके दूसरे घर भेज देते हैं। इस तरह उसकी जान उस मुसीबत से छूट जाएगी। हो सकता है वो इसी घर में मौजूद हो और दूसरे घर में उसके पास ना आ सके। हाँ, ये हल ठीक है, मगर भाई साहब इतनी जल्दी निकाह कैसे करेंगे? अभी तो मौज को गए हुए। जुनेरा की अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। बेगम, खुद को संभालिए, मौज तो चला गया। क्या आप जुनेरा को खोना चाहती हैं? अब्बू बोले, अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी, मगर लोग क्या कहेंगे? उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया। लोगों की बात छोड़ दें, तुम सबसे अहम बात तो भूल ही गए। जुनेरा का निकाह करेंगे किससे? दादो ने कहा। तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। मैं करूंगा निकाह जुनेरा से, जामिन अंदर आते हुए बोला। लम्हे भर के लिए सब बिल्कुल खामोश हो गए। जुनेरा की वालदा ने खामोशी को तोड़ा। जामिन बेटा, ये जज्बाती बात नहीं, उम्र भर का फैसला है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। ठीक ही तो कह रहा है जामिन, अगर मुआज का मामला ना हुआ होता तो मैं 2-4 रोज में जोनी का हाल जामिन के लिए मांगने आने वाली थी।
जुनैरा की अम्मी रोते हुए उनके गले लग गई। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूंगी? भाभी, कर दी ना आपने मेरी खुशी फीकी। भला अपनों को शुक्रिया कहा जाता है? तो फिर ठीक है, निकाह की तकरीब में सिर्फ घर वाले होंगे। परसों जुम्मा है, असर मगरिब में दोनों बच्चों का निकाह कर देंगे। दादों ने फैसला सुना दिया। जुम्मे का दिन आ गया। सुबह ही से सब मसरूफ थे। आज जोनी का निकाह था। दोपहर तक ताया अब्बू और चचा भी आ चुके थे। शाम होने लगी। जुनैरा के अब्बू बोले, अरे रुबीना को कॉल करो, जल्दी निकले, शाम में ट्रैफिक बहुत हो जाता है। उनके कहने पर ज़ारा ने रुबीना फुप्पो को कॉल की। अरे बेटा, बस बैठ रहे हैं गाड़ी में, भाई साहब तो जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। ये कहकर उन्होंने आने के लिए कहा। वो सब लोग अंजाम से बेखबर अपनी नादानी में सब कुछ करे जा रहे थे। मुतमईन थे कि उनका सोचा हुआ हल मसले को खत्म कर सकता है। घड़ी की सुइयां हरकत करती आगे बढ़ती जा रही थी। 5:15, 6, फिर 6:15 बज गए, मगर रुबीना फुप्पो और जामिन नहीं पहुंचे। अब मगरिब भी हो गई। सब परेशान होने लगे। उतने में घर के नंबर पर बेल हुई। अब्बू दौड़ते हुए फोन सेट की तरफ आए और CLI पर रुबीना बेगम का नंबर आ रहा था। उन्होंने जल्दी से रिसीव किया। हद कर दी रूबी, कहाँ रह गई हो भाई, इतनी देर हो गई है और जामिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए जनाब, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, मगर आप जो कोई भी हैं फौरन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचिए। दूसरी तरफ मर्दाना आवाज थी। माफ कीजिएगा, आप कौन? इंस्पेक्टर अजहर बात कर रहा हूँ। इस मोबाइल पर आखिरी नंबर आपका ही था, इसलिए आपको कॉल की गई। जी, ये मेरी बहन का नंबर है। वो कहाँ है? घबराकर पूछा। उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। जुनैरा के अब्बू रिसीवर छोड़कर दौड़ पड़े। सब उनके पीछे थे। ज़ारा ने जल्दी से रिसीवर उठाया तो उसे मालूम हुआ कि बात क्या है। जब सबको पता चला तो होश गुम हो गए। बाकी लोग उनके पीछे भागे। अल्लाह रहम करे, क्या बुरी खबर सुन ली थी। जब सब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन सबको अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया, क्योंकि इंस्पेक्टर अजहर ने बताया जामिन और रूबी फुप्पो गाड़ी में आ रहे थे। उनके आगे ट्रक सरिये लेकर जा रहा था। अचानक वो ट्रक खराब हो गया 20 सड़क पर, और पीछे से तेजी से आती आपकी बहन की कार में ट्रक से बाहर निकले सरिये विंड स्क्रीन तोड़कर घुस गए। जामिन के तो सीने में सरिये आर पार हो गए। जामिन की तो उसी वक्त मौत हो गई थी। गाड़ी बेकाबू होकर पुल की दीवार तोड़कर नीचे गिर गई। या अल्लाह, अब्बू को एक सदमा पहुंचा। हमारी बहन कहाँ है? वो ऑपरेशन थिएटर में है, उनकी सर्जरी चल रही है। सबको सांप सूंघ गया। सब बैठकर दुआएं करने लगे। डॉक्टर बाहर आए तो सब दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने कहा, सर्जरी तो हो गई है, मगर अफसोस कि मरीज होश में आने के बजाय कोमा में चली गई हैं। जुनैरा के अब्बू वहीं कुर्सी पर बैठते चले गए। ताया अब्बू और ताई हॉस्पिटल में रुक गए और जबरदस्ती सबको वापस भेज दिया। जोनी के अब्बू को सबने जबरदस्ती दवा देकर सुला दिया। थोड़ी देर रुककर चचा और चच्ची दोबारा हॉस्पिटल चले गए। दादी जान को चुप लग गई। घर में मातम की फजा एक बार फिर बिछ गई। अम्मी और ज़ारा सहन में बैठी दादों को दिलासे दे रही थी। जाने किस मनहूस की निगाह पड़ गई मेरे घर पर। जोनी की दादो रोते हुए बोली। वो दोनों भी रोने लगी। रोते रोते वो लोग एकदम उछले। सहन में धमाके से एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा था और वो एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले कि उन लोगों की समझ में कुछ आता, सहन में पत्थरों की बरसात हो रही थी। उसके बाद लगा जैसे छत पर हलचल मच गई है। कोई मानो बड़ी बड़ी चीजों को इधर से उधर पटक रहा था। वो लोग दौड़कर एक दीवार से जा लगे। या अल्लाह रहम कर, दादो के मुंह से निकला। ज़ारा बेटा, जोनी को देखो जाकर, कमरे में उठ तो नहीं गई? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो ज़ारा दौड़कर अंदर कमरे में गई। अम्मी, वो वहीं से बोलती हुई भागकर आई। अम्मी, जोनी कमरे में नहीं है। ज़ारा ने आते ही एक और बुरी खबर सुनाई। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अम्मी ने जैसे ही कहा, एकदम छत पर से मर्दाना हंसी की आवाज आई। तीनों की निगाह एक वक्त ऊपर उठी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फट गई। छत की मुंडेर पर जुनैरा हाथ छोड़े खड़ी थी और मर्दाना कहके उसके मुंह से निकल रहे थे। बाल उसके हवा में ऊपर उठे हुए थे। कौन है तू और तेरी मंशा क्या है? क्या चाहता है तू? अम्मी फट पड़ी तो एकदम जुनैरा के कहके रुक गए। देख लिया अंजाम मेरे बीच आने का। ये मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं इसे अपने साथ हर सूरत लेकर जाऊंगा। जोनी ने अपना सीना ठोकते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, तेरी चीज नहीं नामुराद। अम्मी गुस्से से कहने लगी। बस उनका इतना कहना था कि उन्हें एक झटका लगा और वो अपनी जगह से उठकर हवा में मौल्लक हो गई। उड़ रही थी। ऐसा लगा किसी ने उठाकर हवा में उनको ठहरा दिया हो। उन्हें किसी ने बालों के बल लटका दिया। तकलीफ से उनके मुंह से चीखें निकल गई और वह अपने आप को आजाद कराने की नाकाम कोशिशें करने लगी। एकदम दादो ने कलामे इलाही का विर्द करना शुरू कर दिया। लम्हा न गुजरा था कि जोनी की अम्मी नीचे आ गिरी। ज़ारा ने ऊपर देखा तो जुनैरा छत की मुंडेर से गायब थी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? मुझे छोड़ो बेटा,
तुम जोनी को देखो, उन्होंने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ज़ारा डरते डरते ऊपर गई तो जुनैरा छत पर बेहोश पड़ी थी। ज़ारा मुसलसल कलामे इलाही का विर्द कर रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक और बुरी खबर सुनने को मिली। हॉस्पिटल से कॉल आई थी। रुबीना फुप्पो को होश नहीं आया, बल्कि कोमा में ही उनका इंतकाल हो गया। ये खबर तमाम घर वालों पर कयामत बनकर टूटी। दादों पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। वो संभाले नहीं संभल रही थी। इकलौती बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। जोनी के अब्बू अपनी बहन को दफनाकर घर वापस आए और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई तो उठ कर गए और उसे पैसे देने लगे। फकीर ने नोट लेते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। जोनी के अब्बू ने उसे देखा तो बोला, वो अपना कहा जरूर करेगा। उसकी निगाहें आसमान पर थी। एकदम जोनी के अब्बू को झटका लगा और वो वजू करके मस्जिद की तरफ गए। उनका दिल डूब रहा था। उनके प्यारे एक एक करके उन्हें छोड़कर जा रहे थे और वो बेबस थे। मस्जिद जाकर वो अपने रब के आगे सजदा रेज हो गए। ए अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, मेरी जोनी को इस अजाब से निजात दिला दे। आज मैं तुझसे अपनी बच्ची के लिए इस अजाब से निजात मांगने आया हूँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। उन्होंने अपने रब के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। वो मुस्तकिल रोए जा रहे थे। उनकी जाए नमाज आंसुओं से तर थी। कितना वक्त बीत गया उन्हें कुछ इल्म नहीं था। वो मस्जिद में ही थे कि किसी ने आहिस्ता से उनके शाने पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे उठने लगे। उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो बरसों के बीमार लग रहे थे। उनका चेहरा, दाढ़ी, जाए नमाज आंसुओं से तर हो रही थी। उन्होंने निगाह ऊपर की तो वो मस्जिद के इमाम साहब थे जिन्होंने उन्हें उठाया था। मैं माफी चाहता हूँ जनाब कि आपको इस तरह परेशान करके उठाया, मगर मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ और आपको इस तरह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। दरअसल आपकी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बहुत मुश्किल में हूँ इमाम साहब, बहुत मुश्किल में। आप उठिए और मेरे साथ मेरे हुजरे में आइए। वहाँ आकर अब्बू ने सारी तफसील उन्हें बता दी। तफसील सुनने के बाद इमाम साहब बोले, परेशान न हो, हर मुश्किल का हल मौजूद है। बस अल्लाह ताला से मदद मांगकर हम उसको हल कर सकते हैं। आप ऐसा करें, एक कागज पर बच्ची और उसकी वालदा का नाम मुझे लिख कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके काम आ सकूं। आप 3 रोज बाद तशरीफ लाइएगा मेरे पास। जोनी के वालिद ने जल्दी से उसका नाम और वालदा का नाम लिखकर इमाम साहब को दिया। उन्हें हिम्मत हुई। एक उम्मीद उनके दिल में जागी। 3 रोज तक जोनी के घर वालों को खूब परेशान किया गया। कभी चीजें पटकी गईं, कभी जोनी उनके सामने अजीब से जानवर के रूप में आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो खूनख्वार नजरों से सबको देख रही थी। जैसे तैसे 3 रोज गुजर गए। जोनी के अब्बू इमाम साहब के पास गए। नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम साहब के साथ उनके हुजरे में चले गए। मोहतरम, मैंने 3 रोज तक पढ़ाई की। उससे आपकी बच्ची के लिए काफी कुछ मालूम हुआ। एक निहायत जिद्दी, सरकश और नाफरमान जिन है जो आपकी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसके इरादे निहायत खतरनाक हैं। वो किसी कीमत पर आपकी बच्ची को छोड़ने पर तैयार नहीं है। अब क्या होगा? परेशानी से बोले अब्बू। मेरी हद जितनी थी उसके मुताबिक मैंने ये सब तफसील मालूम की। वो बहुत ताकतवर जिन है और अपनी मकसद की राह में आने वाली हर शे को वो नेस्तो नाबूद करने पर तुला रहता है। जिस तरह आपकी बहन और भांजे को उसने शिकार बनाया, आपके बेटे को शिकार बनाया, आपकी बच्ची पर हमला हुआ। आपने कितनी बड़ी गलती की जो उस जिन के होते हुए बच्ची के निकाह का फैसला किया। वो जिन अपने होते हुए भला आपकी बच्ची का निकाह होने देगा? आप पहले किसी से मालूम तो कर लेते, शायद आपके भांजे की जान बच जाती और आपकी बहन की भी। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची अब्बू से सकने लगे। हिम्मत रखिए जनाब, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे जानने वाले एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनसे बात की है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वो बुजुर्ग पहले दफा जुनैरा के घर आए थे, मगर किसी से रास्ता पूछे बगैर चलते गए। लाइन से 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें तीसरा कमरा जोनी का था। तीनों कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही उस सफेद लिबास वाले हसीन पुरनूर शख्सियत के बुजुर्ग ने वहां कदम रखा, धड़ाक से पहले कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो आगे बढ़े तो दूसरे कमरे का दरवाजा भी बंद। फिर वो जोनी के कमरे में आगे पहुंचे तो उनके कमरे का दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने शहादत की उंगली दरवाजे पर रखी। दरवाजा इशारे से खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। बुजुर्ग ने अंदर कदम रखा तो एकदम कमरे में रोशनी हो गई। सामने बिस्तर पर जुनैरा 2 जानू बैठी हुई थी। उसने अपने सारे बाल खोलकर आगे चेहरे पर डाले हुए थे, जिनसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम कमरे में मौजूद अलमारी में लगा हुआ शीशा एक जोर के धमाके के साथ टूटकर किरची किरची होकर जमीन पर बिखर गया। फिर एक तरफ रखी हुई कुर्सी हवा में उड़ती हुई सामने की दीवार से जा टकराई और नीचे जा पड़ी। बंद कर अपनी ये शाबदबाजी, बंद कर ये तमाम तमाशे, बुजुर्ग ने रोबदार आवाज से कहा। चंद लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे वो डर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था।
زونی کے منہ سے مردانہ کہکہے نکلنے لگے. پھر تو کمرے میں طوفان آ گیا. ایک ایک کر کے کمرے میں موجود تمام چیزیں ہوا میں اڑ کر دھم سے نیچے گرتی, پھر اوپر اٹھتی, پھر دوبارہ نیچے گر جاتی. کمرے سے آتی آوازوں سے گھر والے ہول رہے تھے اور مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے. بزرگ نے پڑھنا شروع کیا تو تمام کی تمام چیزیں آہستہ سے نیچے اپنی جگہ پر آ گئی. زونی نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے. پھر اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلنے لگا. زنیرا نے اپنی جگہ سے ہلنے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ ایک انچ نہ ہل سکی. ایسا لگتا تھا کسی نے طاقتور زنجیروں سے جکڑ دیا ہو. پہلے تو وہ زور لگاتی رہی, پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکل گئی. پھر وہ زور سے دھاڑی, چھوڑ مجھے. مگر بزرگ اطمینان سے خاموش کھڑے رہے. میں کہتا ہوں چھوڑ ورنہ پچھتائے گا. غراتے ہوئے دھمکی دی, بکواس بند کر اور چھوڑ دے اس بچی کو, کیوں پریشان کر رہا ہے اسے. حضرت نے غصے سے کہا, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, پہلی نظر میں اچھی لگی. اس کے مہکتے وجود نے مجھے اس پر عاشق کر دیا. میں اس کا عاشق ہونے پر مجبور ہو گیا. اب یہ صرف اور صرف میری ہے. اس کو میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا. بھاری آواز سے بول رہی تھی. چھوڑنا تو تجھے پڑے گا, ناممکن ہے. یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ کوئی چیز نہیں, جیتی جاگتی بچی ہے, انسان ہے, اور اس پر تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی. اور رہی بات لے جانے کی, تو اسے کیا لے کر جائے گا, پہلے اپنے جانے کی تو فکر کر. بزرگ نے اتنا کہا اور زنیرا کے منہ سے درد بھری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. زونی نے سر پٹکنا شروع کر دیا. چھوڑ دو مجھے, جن نے غراتے ہوئے کہا. مگر بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی. میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے. بزرگ پڑھتے رہے. چھوڑ دو مجھے, جانے دو. اب اس کی آواز میں اذیت تھی. جانے دو مجھے, اس نے گڑ گڑا کر کہا. نکل گئے تیرے سارے قصبل, ساری اکڑ. میں چلا جاؤں گا یہاں سے, مجھے چھوڑ دو, جن نے منت والے انداز میں کہا. صرف اتنا نہیں کہ چلا جاؤں گا, وعدہ کر کہ تو اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا, تو پھر تیری بات پر غور ہوگا. بزرگ نے پڑھائی روک کر کہا. تو چند لمحے زنیرا خاموش رہی. پھر بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی تو زونی کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی. معاف کر دے مجھے منظور ہے, مجھے جانے دے, میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا, جن نے اذیتناک انداز میں بلبلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, بزرگ نے کہا, اور پھر کچھ پڑھ کر زنیرا کی جانب پھونک ماری تو اس کے جسم سے ایک کالا دھواں نکل کر فضا میں گم ہو گیا, تحلیل ہو گیا, اور زنیرا دھپ سے بستر پر گر پڑی, بے سدھ ہو گئی. بزرگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زنیرا کے گھر والوں کے پاس گئے. زنیرا کے والد کو ایک تعویذ دیا اور بولے, لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بچی کے گلے میں ڈال کر آؤ. زنیرا کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئی اور اسے زنیرا کے گلے میں ڈال دیا. جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا, وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں آ پائے گا, کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں. یہ تعویذ زندگی بھر اس بچی کے گلے میں رہنا چاہیے, اور پہلی فرصت میں آپ اس بچی کا نکاح کر دے. شادی کے بعد بھی یہ تعویذ اترنا نہیں چاہیے. میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں. والد نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے. شکر میرا نہیں, اس پاک ذات کا کریں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بزرگ کے کہنے پر جھٹپٹ زنیرا کے لیے رشتہ ڈھونڈا گیا, ساتھ میں زارا کے ساتھ بھی. اس کی شادی طے پائی. بیٹا کوشش کرنا, سارے کام پہلے ہی نمٹا لو, ورنہ آخر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور پھر رخصتی دیر سے کی جاتی ہے. دادو نے کہا. جی بہتر امی حضور. زونی کی امی نے کہا. دادو اپنے کمرے میں چلے گئی. سنیے, نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف آ رہا ہے. زنیرا کی امی بولی. نہیں بیگم, یہ صرف وہم ہے. جب تک یہ خبر آپ نے سنی نہیں تھی تو آپ مطمئن تھی. ہاں سچ میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہی بزرگ جنہوں نے ہماری بیٹی کا علاج کیا, اچانک ان کا انتقال ہو گیا. وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. کتنا بہترین علاج کیا تھا. ہمت سے کام لیں. اور یاد ہے نا, شاہ صاحب نے وہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ مردود شیطان چاہ کر بھی ہماری بچی کے قریب نہیں آ سکے گا. زنیرا کے ابو بولے. آپ دعا کریں ہماری بیٹی خیریت سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جائے. اب یہاں پر وہ جن چھت پر ٹہل رہا تھا. اس کی سبز چمکتی آنکھیں اندھیرے میں اور بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھی. نیچے زارا اور زنیرا کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی اور وہ بےتابی سے زنیرا کو دیکھ رہا تھا, مگر وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پر مجبور تھا. وہ بے بس نگاہوں سے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. چھت پر کسی کے آنے کی چاپ سن کر وہ چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر چلا گیا. دادو زونی کے پاس کمرے میں آئی. اس کی بلائے لینے لگی. کتنی حسین لگ رہی ہے میری بچی, اللہ نظر بس سے بچائے. انہوں نے پیار سے زونی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. وہ چلی گئی اور بیوٹیشن نے زنیرا کے سنہرے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کنگے سے بالوں کو تیزی سے سمیٹنے لگی. اوپر نیچے جاتے کنگے میں اچانک تعویذ کی ڈوری اٹکی اور اس کی گرہ کھل گئی. تعویذ کب زنیرا کے گلے سے نکل کر نیچے گرا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا. بیوٹیشن اس سے پہلے کچھ کرتی کمرے میں اندھیرا چھا گیا, اور پھر جب روشنی ہوئی
तो ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी और जुनेरा दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे। उसने परफ्यूम की बोतल उठाई और अपने ऊपर स्प्रे कर लिया। वो अकेली न थी, उसके बराबर में एक नौजवान खड़ा था। उसकी सब्ज आंखें जोनी पर थीं। तुम सिर्फ मेरी हो, आज मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। उसके मुंह से आवाज निकली। जुनेरा ने उस नौजवान की आंखों में देखा, फिर वो खोती चली गई। जोनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जोनी। जारा ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो सीधी अम्मी के पास गई। उन्होंने दादो से कहा। फिर तो अम्मी, अब्बू, दादो सब जोनी के कमरे में बाहर जमा हो गए। अम्मी ने तो दरवाजे को तोड़ देने वाले अंदाज से पीट डाला, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब्बू और चचा ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। सब अंदर आ गए। वहाँ एक तरफ ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी, मगर जुनेरा का कहीं नामो निशान नहीं था। दादो ने बाथरूम में झांका, वो खाली था। सबने ब्यूटिशियन को उठाया। उसने कहा, एकदम लाइट चली गई थी, फिर उसे कुछ याद नहीं, मगर सब हैरान थे, लाइट तो गई ही नहीं थी। दादो ने कमरे में रची परफ्यूम की खुशबू पर गौर किया। उन्होंने अपना रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ किया। वहां उनका इस्तकबाल परफ्यूम की खुली हुई बोतल से किया गया। दादो ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, तो उनको ऐसा लगा वहां पर कोई चीज पड़ी है। उन्होंने झुककर उठा लिया। वो चीज कुछ और नहीं थी, जोनी के गले में पड़ा हुआ बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज था। उस जिद्दी जिन ने अपनी जिद पूरी करके छोड़ी थी। ये मेरी चीज है और मैं इसे जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। बड़ों की बात को नजरअंदाज करके कभी हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर बड़े कुछ समझाएं तो हमें समझना चाहिए, इसमें जरूर हमारी भलाई है। एक सरकश हरी आंखों वाले जिन ने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया और उसे ले गया।